Okay, we're live. Hi. Let's wait for some users to join us before we start. All right, we have viewers. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे तीसरे सेशन की गेस्ट हैं मीना इकबाल, जो हमें बताएंगी कि बैलेंस डाइट के ज़रिए हम अपनी इम्यूनिटी और फिजिकल वेलबींग को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। मीना एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन और फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। इस फील्ड में इनका 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। न्यूट्रिशनल इंटेक को जहन में रखते हुए मीना डायबिटीज़ और मोटापे के लिए ऐसे हल बताती हैं जो लाइफस्टाइल में तब्दीली के ज़रिए मुमकिन हो। Before we begin, I'd like to mention we will be taking questions at the end of the session. तो अगर आपके पास कोई भी questions मीना के लिए हो, आप please comment section में लिख दें and we will address them at the end. Assalamu alaikum, Meena. Walaikum assalam, Kiran. How are you? I'm good. How are you? I'm good. And thanks for Meena, inviting me for this session. Thank you for coming. मीना, आप हमें ये पहले बता सकती हैं कि ऐसे कोई न्यूट्रिएंट्स हैं जो कोविड-19 से हमारी हिफाजत कर सकते हैं? अच्छा, so COVID-19 एक infectious disease है जो कि कुछ महीने से we all know that it's over here and we're scared of it and all. And उससे related बहुत सी बातें रही हैं in mainstream media और वैसे भी कि अगर हम ये चीज़ लें तो कुछ हमारे अंदर improvement हो सकती है, हम इस disease से बच सकते हैं. But ऐसा कुछ नहीं है. It's not one ingredient that is going to protect you from having the disease or contracting the disease. So it's like a collection. The best way to protect yourself from getting exposed to the virus and then getting the diseases, first thing, you have to follow the social distancing and physical distancing protocols. You have to take care of your hygiene and all those things. Secondly, if you have proper nutrition, if you're not malnourished and you have good immunity, you're taking balanced diet, then you probably would be having good immune system. And if you have good immune system, your virality of this virus can be what I mean to say is the recovery phase. Even if you get this virus and you contract the disease, the recovery phase would be much better for you, and the severity of symptoms would be much reduced if you actually have good immunity. So for good immunity, there's no one ingredient that, as you asked, there's no one ingredient or one nutrient that would work for good immunity. Good immunity is achieved through balanced diet. Balanced diet, again, for good immunity, we actually need a lot of nutrients like copper, selenium, zinc, vitamin C, vitamin A, vitamin D, and then we have B complex vitamins, and there are several other nutrients, protein, folate. These are all nutrients that actually collectively help us in having good immunity. So for that, obviously, if we need to take a variety of nutrients, we actually need to take it through a variety of diet. So we have to take a lot of unprocessed and fresh foods for that. That's how we're going to actually get that. And plus, yes, again, if we talk about balanced diet, as I've said, balanced diet is something that helps us have good immunity. So to achieve balanced diet, we actually have to take a variety of fresh and unprocessed food. We have to take all the macronutrients, micronutrients. Macronutrients are carbohydrate, protein, and fat, and these are the nutrients that are required in our in larger amount in our body. So carbohydrate provide us with energy, protein provide us with a lot of actually it has a lot of functions in our body. It helps us in building stronger immunity. Then there are several functions in building blocks, building mechanisms that protein helps us with, our muscle built up and all a lot of other things. And then fat, again, fat is something that is demonized, but the thing is there's certain amount of fat and certain type of fat that we need. Right. So yeah, so all these nutrients are very essential for having good immunity. And then we'll come up towards micronutrients. Micronutrients are vitamins and minerals. So as I've told, that there's a collection of vitamins and minerals that we require for improving our immunity. So Right. if we talk about this, that the amount of nutrients that we need to take, we can say
carbohydrates, we at least our body to function properly, it requires at least 130 grams of carbohydrates per day. ठीक So है how we can take that is we can have one 6-inch roti in the morning or thrice a day in 3 meals, or even if we are taking 2 rotis at one time, we can reduce it at other times. So जी this is how, and there are other sources of carbohydrates are potatoes. Potato is something that we consider as a vegetable, but it's not. It's basically starch. So it should be taken as a starch or a carbohydrate rather than being taken as a vegetable. Sometimes we get aloo ki katliyan and those things. If we actually only consider take potato in a meal with a roti, we are actually overdosing ourselves with carbohydrates and we're not taking other nutrients. So potato हमें इस तरह से उसके साथ deal करना है कि potato एक actually carbohydrate है. Yeah. So the options for carbohydrate, जैसे मैंने आपको बताया, whole wheat flour. Instead of choosing white flour जी या जी फिर refined products, हमें choose करना चाहिए whole wheat, whole grain flour actually. Whole grain का मतलब ये होता है कि उसकी पूरी ग्रेन उसमें शामिल हो, जो आटा आप यूज़ कर रहे हो उसमें उसका छिलका भी हो और अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो. सो आपको पूरा चक्की का आटा या फिर होल ग्रेन फ्लावर यूज़ करना चाहिए. वो किसी भी टाइप का हो सकता है. आप कभी मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, आप बेसन की रोटी भी बना सकते हैं, आप चक्की का जो सिंपल व्हीट आटा है वो यूज़ कर सकते हैं, और इनको कॉम्बिनेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं. दिस एक्चुअली हेल्प्स इन रेगुलेट. सो इसके अलावा देन राइस वाइट राइस भी आप ले सकते हो. देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद यूजिंग वाइट राइस और ब्राउन राइस ऐसा एज सच. आपको कैलोरीज तकरीबन उतने ही मिल रहे होते हैं. इट्स दैट ब्राउन राइस में फाइबर कंटेंट थोड़ा बढ़ जाता है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल वो प्रॉपरली थोड़ा सा ग्रेजुअली इंक्रीज करता है. बट इफ़ यू कंट्रोलिंग द पोर्शन ऑफ राइस, कि आप अगर एक वक्त में आधा कप या 3/4 कप राइस ले रहे हो, तो फिर आप काफ़ी हद तक अपनी हेल्थ को अच्छी तरह से उसको रख सकते हैं. Other than this, again, we talked about potatoes, and sweet potatoes are all the pasta की, so you can go for that also. So इसके अलावा now we'll talk about protein. Protein में हमारे पास options होते हैं meat, which is red meat, white meat, which is poultry, chicken. फिर अंडे हैं, मिल्क है, दही है, ये सब चीज़ें. अब हमारी सोसाइटी का इशू ये है, और प्रोटीन एक्चुअली इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रोटीन बहुत वाइटल रोल प्ले करता है. तो हमें प्रोटीन का इंटेक सही रखना बहुत ज़रूरी है. लेकिन ऑब्वियसली कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल और हमारी कंट्री के हालात देखते हुए, प्रोटीन के ये वाले सोर्सेज हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता. तो इसके कुछ ऐसे सोर्सेज जो कि हम प्रोटीन जो ऑल्दो वेजिटेबल सोर्सेज में प्रोटीन उतनी अच्छी क्वालिटी का हमें नहीं मिलता जितना एनिमल सोर्सेज से मिलता है. लेकिन अगर वेजिटेबल सोर्सेज को अगर हम कंबाइन करें, सो वो कंबाइन होके कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. सो कुछ एसेंशियल प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें किसी वेजिटेबल के एक सोर्स से मिलते हैं, कुछ किसी दूसरे सोर्स से. For example, if I tell you about खिचड़ी is actually a good source of protein. अगर आप उसे दही के साथ कंबाइन कर लें तो और भी अच्छी बात है. तो चावल के अंदर कुछ सोर्सेज ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, और दाल के अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स. वो कंबाइन होके आपको कंप्लीट अमाइनो एसिड्स और कंप्लीट प्रोटीन दे सकते हैं. इसी तरह से अगर आप दालें खा रहे हैं, तो कोई एक दाल बनाने के बजाय मिक्स करके दाल बनाएं. अगर मिक्स करके हमने दाल बनाई है, तो फिर इसी तरह डिफरेंट दालों से डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलके आपको कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं. एक और अच्छा ऑप्शन इसका होता है वेजिटेबल पुलाव, लाइक पी पुलाव. मटर के अंदर भी, मटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. उसे भी अगर आप चावल के साथ कंबाइन करते हैं तो वो भी आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है. इसी तरह रेड किडनी बीन्स कुछ ऐसे बीन्स हैं, आप उसको भी मिक्स करके भी ले सकते हैं, या बीन्स की राइस भी बना के ले सकते हैं. इसी तरह सो यू हैव टू ऐड वैरायटी. किसी दिन आपने कोई बीन्स यूज़ किए, किसी दिन दालें यूज़ की, किसी दिन आपने मीट सोर्स प्रॉपर यूज़ कर लिया.
सो इस तरह से यू हैव टू ऐड वैरायटी। एंड अगर आप हफ्ते में एक आध बार मीट अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर उसका कुछ अमाउंट किसी एक दिन यूज करें। अगर आप अफोर्ड एक एक मील में कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा अमाउंट एक दिन में ले लें मीट का। मतलब अगर चिकन या मीट आप इंक्लूड कर सकते हैं कभी कभी अपनी डाइट में, तो जी उससे एक दिन ज्यादा लेने के बजाय उस अमाउंट को थोड़ा सा ब्रेक कर लें एक दो दिन में वीक के अंदर, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से वो बॉडी में यूज अप ज्यादा बेटर होगा, उसके बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिल सकेंगे। ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। एंड देन अगेन फैट के लिए हमारे पास बहुत से सोर्सेज मौजूद हैं, बट द थिंग इज द वंस वी शुड चूज आर द मोनोअनसैचुरेटेड फैट, लाइक द ऑयल्स जो हमारे पास रेडली अवेलेबल है। लेकिन ऑयल में अभी हम जो सजेस्ट करते हैं ज़्यादातर सेफेस्ट इन कंसिडरिंग पाकिस्तानी कंडीशन, तो कैनोला ऑयल हम सजेस्ट करते हैं, कैनोला ऑयल फॉर पीपल टू यूज़, बिकॉज ऑलिव ऑयल जो यहाँ पे अवेलेबल है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। सेकेंडली ऑलिव ऑयल इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर कुकिंग. So if you have extra virgin olive oil and if you can afford to use it for cooking, you can actually use extra virgin olive oil for cooking. और अगर mustard oil किसी अच्छे source से मिल रहा है, you can actually go for that also. So these are few macronutrients से related जो हमारे पास है information कि हम macronutrients को किस तरह से कौन से sources हैं जिनके through हम macronutrients को include कर सकते हैं. Micronutrients के लिए again vegetables and fruits. हमारे पास वेजिटेबल एंड फ्रूट, अगर दिन में हम 5 से 6 वेजिटेबल एंड फ्रूट, जिसमें से 2 फ्रूट्स हों और बाकी सब वेजिटेबल्स हों, तो ये आपको बहुत अच्छा अमाउंट आपको मोस्टली आपकी डाइट को बैलेंस रख सकता है और आपको वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स से दे सकता है. और बस ये ख्याल रखना है इसमें कि वो फ्रूट्स सीजनल हों, जो उस सीजन में मौजूद हों, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा होता है कि उस पर आपको ग़िज़ाइयत ज़्यादा मिल रही होती है. दूसरा वो चीपर भी होते हैं सीजनल फ्रूट्स, क्योंकि अगर किसी और मौसम का अगर आप फ्रूट लेंगे वो यूजुअली आपको, क्योंकि वो उस मौसम में नहीं है, उसकी ये उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा कुछ, तो वो कभी कभी एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है. तो खैर पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में हम अब आई डोंट वांट टू गेट ऑन दैट साइड, बट द थिंग इज यहाँ पे सीजनल फ्रूट्स को भी महंगा करके बेचा जा सकता है. एनीथिंग इज पॉसिबल ओवर हियर बिकॉज रेगुलेशंस एंड ऑल इतनी अच्छी तरह से तो फॉलो होती नहीं है. बट येस, यू कैन आइडेंटिफाई सोर्सेज जहाँ से आपको कम कीमत में या अच्छी कीमत में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाते हों सही सोर्स से. तो येस, इट्स बेटर कि आप उसे दिन में 5 से 6 तकरीबन फ्रूट्स या वेजिटेबल के सोर्सेज इंक्लूड करके रखें. सो दिस एक्चुअली गिव्स यू अ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में बेहतर करेंगे. ठीक है. अच्छा मीना, मुझे एक और बात बताएं. अगर जैसे आपने अभी बहुत डिटेल्ड उसमें बताया कि प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड दिस, बट अगर हम हर न्यूट्रिएंट का हिसाब किताब ऑन अ डेली बेसिस ना रख सकें, तो फिर हम किस तरह से बैलेंस डाइट को मेंटेन फिर भी कर सकते हैं? अच्छा, इसके लिए सबसे अच्छा एक तरीका ये है, ऑब्वियसली आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कि हर किसी के लिए डेली बेसिस पर एक एक न्यूट्रिएंट्स, एक एक इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इतनी सारी चीज़ें होती है दिन में करने के लिए, दैट इफ़ यू कीप थिंकिंग अबाउट योर फूड आप वो मैनेज नहीं कर पाओगे. फिर मे बी यू विल एंड अप हैविंग समथिंग अनहेल्दी जो आपको ईजिली मिल जाए. तो फिर उसके लिए आप बस अपनी माइंड में ये रखें कि यू हैव टू कुक दीज थिंग्स, कि आप ग्रोसरी की शॉपिंग करते हुए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को आप अपनी शॉपिंग में इंक्लूड करें. फिर जब अगर आप अपनी प्लेट को डिवीजन करने का एक तरीका आप लाइक यूएसडीए एंड यूएस गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक माई प्लेट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको हार्वर्ड ने भी और ज़्यादा फिर उस पर बात की है. तो उसमें अगर आप उसमें वो आपको एक इजी तरीका दे देते हैं विजुअलाइज करने का अपनी प्लेट को, कि अगर आप अपनी प्लेट को उस तरह से डिवाइड करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने आप को सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपके लिए एसेंशियल हैं वो देंगे. सो 3 times in a day if you divide your plate like this, कि आधी आपकी प्लेट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स से भरी हुई हो, लाइक जिसमें सलाद भी आ गया. अगर आप 1 कप सलाद हर मील में इंक्लूड कर सकते हैं तो दैट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो 1 कप सलाद अगर आप हर मील में इंक्लूड कर रहे हैं तो आपकी प्लेट काफ़ी हद तक आधी प्लेट उससे कवर हो सकती है. एंड देन इफ़ यू हैव सम कुक्ड वेजिटेबल्स, तो हाफ कप कुक्ड वेजिटेबल्स इज़ 1 portion ऑफ
vegetable. So you can add that also in that. So half of your plate should be filled with fruits or vegetables, and then two other quarters, the other half उसको अगर दो quarters में divide कर लें तो उस quarter में एक में protein और एक में carbohydrates. So if you ठीक है. divide your plate like this, then there are higher chances that you would be getting a good amount of all nutrients that are required by your body. So this is the easiest way कि आपको हर चीज़ calculate नहीं करनी पड़ी कि इतना मुझे ये लेना है, इतना मुझे ये लेना है. आप अपनी plate को simply इस तरह divide कर दो कि आधी plate fruits and vegetables से fill कर दें, and then a quarter जिसमें protein का कोई source हो और दूसरे quarter में कोई carbohydrate का source हो, which can be pasta, which can be rice, which can be roti. Okay. Yeah. So if I took an average house's meal for example and I wanted to split it, तो वो हो सकता है कि आधी प्लेट में सब्जी हो, थोड़े से चावल हो और उतनी दाल हो, correct? Yeah. दाल आप 1 cup 3/4 cup से 1 cup के अराउंड आप समझ लें उतनी ले सकते हैं if it's in the medium consistency. So it can be that. Yeah. मीना, वन मोर क्वेश्चन. करंट जो कोविड का सिचुएशन है उसको अगर आप अपने जहन में रखते हुए सोचे तो आप हमें बता सकती हैं कि जिंक और विटामिन डी जो है उनकी अहमियत एग्जैक्टली क्या है? अच्छा. So basically, malnutrition is something that is directly associated with virality और infectious disease कितनी severe होगी आपके अंदर, उसके साथ malnutrition directly related है. And we've talked कि सारे nutrients होना ज़रूरी हैं. So in some cases जिसपे deficiency हो and वैसे भी अगर हम कभी अपने आप का check करवाए तो I would say that you should rather go to a doctor and get yourself checked with for vitamin D levels or zinc level or any nutrient that you want to get yourself checked for. So आप वो check कराएं और अगर आप deficient हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर के कहने पे जिस तरह से उन्होंने बताया है उतनी amount में supplements लें. And if you actually अब हमारे अगर ये तो बात हुई कि जब आप deficient हैं, अगर आप नहीं हैं तो उसमें भी अब हमारी डाइट इस तरह की है कि अगर कभी आप मल्टी विटामिन्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, सो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स यू. यू कैन सप्लीमेंट योर बैलेंस डाइट विद these supplements actually, but don't think कि अगर आप यही सिर्फ करोगे तो फिर आपके लिए beneficial है. अब role of zinc and vitamin D specifically for COVID-19, there are researches that are going on. Zinc previously has shown some multiple benefits in certain conditions of infectious diseases के लिए. Zinc का पहले भी COVID से पहले भी influenza इन सब में zinc basically help करता है. It actually जो virus के जो pathway है within the body, जो पैथोजेनेसिस या पैथोजेनिक पाथवे है इन द बॉडी के, वो जहाँ पे जाके अटैच होता है फिर रेप्लिकेट करता है, लाइक मल्टीप्लाई होता है और फिर वो साइट जहाँ पे उसे अफेक्ट करना है वहाँ पे जाके अटैच होके अपनी वायरलिटी फैलाना और डिजीज क्रिएट करना. सो जिंक इस चीज में हेल्प करता है कि वो इस पाथवे के अंदर काफ़ी ऐसे चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि वो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस के लिए या सेल मेम्ब्रेन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जिंक इज इम्पोर्टेंट. अगर आप जिंक में डेफिशिएंट हैं तो आपके अंदर अगर वो वायरस आ गया तो फिर चांसेस ऑफ डेवलपिंग द डिजीज आपके लिए और सिम्टम्स सिवियर होना, इसके चांसेस आपके लिए थोड़े ज़्यादा हैं उस केस में. तो जिंक इस तरह से आपकी हेल्प करता है. एंड देन इन सम केसेस, इन केस ऑफ कोविड-19, कुछ कंट्रीज में जहाँ पे ऑलरेडी दे हैव हैड अ लॉट ऑफ केसेस, वहाँ पे जिंक को इन हायर डोजेस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हायर डोजेस में जिंक दे के देखा गया था ड्यूरिंग देयर रिकवरी पीरियड, एंड इट एक्चुअली शोड बेटर रिजल्ट्स. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट विटामिन डी, so लेकिन again I would say कि they are researching this more and they're waiting for more results to actually declare something that is directly related. Right. It's the same is the case with vitamin D also. These are the two ingredients इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये इनकी रिकवरी फेज को इम्प्रूव करने में काम आते हैं. और फिर विटामिन डी का कनेक्शन बेसिकली डेथ के साथ एसोसिएट किया जा रहा है, क्योंकि जिन कंट्रीज में डेथ ज़्यादा हुई हैं
वहाँ पे ऑलरेडी विटामिन डी का लेवल इन द पीपल वो थोड़ा सा रिड्यूस था, तो दे आर सेइंग दे माइट बी अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन डेथ इन COVID-19 and lack of vitamin D in the body. So yes, this is again, they have to research it more. They cannot completely declare anything related to this. But vitamin D का level हम कैसे improve कर सकते हैं in ourselves? वैसे तो vitamin D around the world, most of the countries में, ज़्यादातर लोगों में it's like naturally काफ़ी lack करता है, deficient होते हैं mostly लोग in vitamin D deficient होते हैं लोग. सेम इज द केस इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं. बट अगैन आई वुड से कि अगर खुद ही सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके लेवल्स क्या हैं. अगर आप डेफिशिएंट हैं तो फिर आपको शॉट्स, विटामिन डी के शॉट्स दिए जाते हैं विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैप. अगर वो सही हो जाता है तो फिर सप्लीमेंटेशन. अच्छा, विटामिन डी. और फिर वी डोंट ईट अ लॉट ऑफ ऑयली फिश. ऑयली फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, लेकिन हमारे यहाँ इतना ज़्यादा वो खाई नहीं जाती है. सो अब अगर वो नहीं खाई जाती है तो फिर ऑब्वियसली वी आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी. प्लस जो ऑल्दो हमारे पास इतनी सनलाइट है बट स्टिल हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम स्टिल डेफिशिएंट हैं. तो सनलाइट का एक्चुअली इशू ये है कि you have to take it at the right time of the day, cloudiness, and then there's several other factors that actually um, play a role in taking benefits from the sunlight in case of actually producing vitamin D in the body. तो फिर इसीलिए फिर कहा जाता है इन दी एंड, साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि विटामिन डी के सबसे अच्छे सोर्सेज हमारे पास फोर्टिफाइड फूड रह जाता है, लाइक फोर्टिफाइड सीरियल्स और ब्रेड्स और दीज थिंग्स, और फोर्टिफाइड जूसेस. सो या फिर कोई सप्लीमेंटेशन. सो विटामिन डी के लिए अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है तो फिर आपको सप्लीमेंटेशन लेनी पड़ेगी. अदरवाइज इफ यू इंक्लूड अ लॉट ऑफ ऑयली फिश इन योर डाइट then you can do it better. All right. Yeah. Okay. Achha, Is there anything else you would like to add? Sorry. Yeah, I would actually want to say again, yes, one more thing, that हमारे यहाँ anemia, especially in women, ये बहुत ज़्यादा है, iron की Yes. deficiency and anemia. So that is obviously also associated with infectious diseases, और उसकी severity को वो भी worsen कर सकता है. Right. अगर आप एनीमिक हैं. और सिंस वो बहुत ज़्यादा है तो आपको इसमें ये फोकस करें. एक पॉइंट जो मैं उस वक्त भी बताना चाहती थी, प्रोटीन सोर्सेज में हम लोगों ने ना रेड मीट खानी बिल्कुल छोड़ दी है काफ़ी टाइम से. लाइक वी सिंस आई थिंक लास्ट डेकेड और समथिंग, जब चिकन बहुत ज़्यादा इंक्लूड की हमने अपनी डाइट में और रेड मीट को टोटली आउट कर दिया, थिंकिंग दैट उसमें बहुत सैचुरेटेड फैट्स है, जो कि है, आई वुडंट से कि नहीं है. But the thing is, it is also a very good source of good quality iron. Right. Actually, so आपको वो include करना, अगर आप हफ्ते में 2 दिन red meat include करते हो अपनी डाइट में, and the portion that you're taking at one time is around 2 boti of red meat. से हफ्ते में आपने 2 बार इंक्लूड किया, एक वक्त में आपने 2 बोटी ऑफ रेड मीट ली है, या फिर इफ यू सी द palm of your hand, इतना अगर अमाउंट ऑफ रेड मीट आपने एक वक्त में लिया है, that's perfectly fine and you get good amount of iron through that. तो फिर उसे अगर आप अपनी डाइट में दोबारा इंक्लूड करें तो दैट वुड एक्चुअली हेल्प अस इन इम्प्रूविंग आवर आयरन सोर्स. प्लस इसके लिए और हम क्या कर सकते हैं, रेड किडनी बीन्स आर आल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ इसमें रेड मीट. एंड द वुमेन हु आर वेरी वेरी डेफिशिएंट, उन्हें फिर कुछ IV सोर्सेज से सही करना पड़ता है. अगर उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो चुका है तो फिर उन्हें IV के लाइक इंट्रावेनस उन्हें इंड्यूस करनी पड़ती हैं some मेडिकेशन, जिससे फिर उनके लेवल्स इम्प्रूव होते हैं. सो ऑब्वियसली आई वुड कमेंट ऑन दैट अगर आपको अपनी दिस इज अगेन रिलेटेड टू बैलेंस डाइट एंड the approach that include variety of nutrients and variety of foods in your diet. If you do that, you would most probably be protecting yourself from having any kind of deficiency, any kind of nutrient deficiency. And if you don't have that, you will have good immunity and you can improve that. Okay. Yeah. Anything else you would like to add, or should we take questions now? There's one thing that I can add is this, that if you're purchasing anything from outside, so what you should do, food related habits that can actually protect you from being exposed to the virus. But one thing that you should
not go to the grocery stores that often. Just write the list of food or anything that you want to purchase, and then go and collectively buy those things. फिर उसके अलावा when you're coming back home, आप अपने जो भी ग्रोसरी के बैग्स हैं वो ज़मीन पे रखें, हर चीज़ को निकालें बाहर. आउटर पैकेजिंग अगर आप थ्रो कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, तो उसे फेंक दें. और दूसरी बात ये कि उसे अगर आप वॉश कर सकते हैं कि जिस पैकेजिंग को, कोई हार्ड पैकेजिंग जो कि एब्जॉर्बेबल नहीं है, उसे आप 20 सेकंड के लिए सोप के साथ वॉश कर सकते हैं, तो प्लीज डू दैट. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए ऑल्दो देयर आर सम पीपल हु से कि अगर आप उसे थोड़ा सा सोपी वाटर के अंदर सोप कर दें, so but that's not scientifically proven and we don't actually suggest that. If you wash them with warm water, तो फिर वो ज़्यादा better होगा, and then let it dry. Just Okay. like that. Yeah, once it is washed, let it dry and then cover and store it wherever you want to store it. So these are few things that if you take care कि आप जब food later packaging को properly packaging के साथ properly deal करना, either throw it away or wash it for 20 seconds. So this is something that is going to rise. Then once you're done with all of these things, the counter you're working on, उसको disinfect कर दे. So just these are a few steps. If you take care of these, then you can actually protect yourself from it. Right, I think this is very important. Yeah. All right, would you like to answer some questions now? Yeah, do we have questions? I have questions. So the first question we have is by Leila. She is asking, what about corn flour or makki ka atta? Corn flour or makai ka atta is basically the corn flour. Corn flour is something which is very, very refined, which we use as thickener in our soups or gravies. Right. So if you use it in little amount, you can use it sometimes. And makai ka atta is the whole grain makai ka atta. So you can use that. Definitely you can use it as a combination with other attas like regular chakki ka, wheat का आटा उसके साथ combine करके भी ले सकते हैं, और separate रोटी बना के भी ले सकते हैं. It is good. It has good amount of fiber and nutrients. So yes, you can take it. लेकिन ये winters के लिए ज़्यादा suitable है. आप summers में कभी कभी लें, but winters के लिए ज़्यादा suitable रहता है ये. Because you know हमारी body, हमारे culture, हमारी land के हिसाब से हमारी body, क्योंकि हम सदियों से यहाँ पे रहे हैं, तो there's a makeup of our body. So is there certain nutrients, certain foods that we should choose in certain seasons. So makai ka atta is a very good option for winters. Okay. Next question is, what is a good time to take sunlight? Okay, sunlight के लिए इसमें बहुत सारे different views हैं. कुछ लोग कहते हैं कि in the morning and कुछ कहते हैं evening और कुछ कहते हैं peak hours में. So peak hours में यही है कि you actually have to take good amount of sunlight, इसमें intensity भी हो, then your body is going to produce it. So अगर आप 15 minutes हमारी क्योंकि काफी intensity होती है in the sun, if you go out and sit there for 15 minutes under the sun, तो एक्चुअली आप उसके लिए दोपहर में 15 मिनट्स के लिए या अराउंड 2 to 3, 12 to 3 के बीच में, अगर 2 to 3 के टाइम में भी हमारे यहाँ अच्छी खासी इंटेंसिटी होती है, सो वी कैन एक्चुअली सिट ड्यूरिंग दैट टाइम. प्लस इसमें पता है ये भी डिपेंड करता है सनलाइट के, एज आई सेड कि सनलाइट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सो द पीपल विद डार्कर स्किन दे वुड एब्जॉर्ब लेसर, मतलब वो उसके बेनिफिट्स उनके लिए कम होंगे. अ पर्सन विद फेयर स्किन वुड बेनिफिट अंडर सनलाइट मोर, उनकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी बिकॉज देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन द स्किन ऑफ डार्कर स्किन पीपल के जो कि उसे प्रिवेंट कर रही होती है. ठीक है. So morning and दोपहर both are okay. 15 minutes is the actual morning I would say या हमारी कंट्री के हिसाब से क्योंकि इंटेंसिटी अच्छी खासी है तो 15 minutes is more than enough. And I would say कि अगर आप आफ्टरनून में ले लेते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है. सही. And you don't even have to do it every day, like alternative days in the weekend. Okay, all right. Next question is, how dangerous is chicken and would reducing it make a difference? Okay, so depends on the source कि आप उसे कहाँ से ले रहे हो. जैसे आजकल बहुत सारी फार्म चिकन जिसको बहुत सारे वहाँ पे कुछ उन्हें कुछ इस तरह के केमिकल्स, स्टेरॉइड्स या हार्मोन्स इस तरह के उनको दिए जाते हैं जो कि उसकी ग्रोथ फास्टर और उनका फ्लैश थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है. So क्योंकि it has become an industry, they use alternative methods to actually have more profits.
तो Yeah. आप उसके बजाय पोल्ट्री फार्म वैसी चिकन के बजाय जो रेगुलरली अवेलेबल है इन द मार्केट, इफ यू गो फॉर देसी चिकन जो कि एक प्रॉपर पोल्ट्री फार्म जो के मतलब एक फार्म में जिस तरह से एक नॉर्मली चिकन को बड़ा होना चाहिए, एक बगैर किसी एडिटिव के जो इन्हें एक फूड मिलना चाहिए, उसके साथ जी. जो ग्रो हुई हुई चिकन है उस तरह के माहौल में रही हुई, सो वो अगर आप लें और हफ्ते में 3 से 4 बार खाएं तो दैट्स परफेक्ट. Okay, great. Last question is how to improve HB and appetite in dialysis patients. Do you have any advice So for that? I wouldn't actually comment on dialysis patients right now because our topic is related to COVID-19. Right. Okay. So I would say yes, if you talk to your doctor and then go to your dietitian, that would be better. Right, because dialysis is a little bit of a sensitive Yes, thing. आप yes. अगर Tabina, So we if need you to know a lot of different things, yeah. right, so Tabina, we would suggest you consult with your physician, as they would probably be able to give you better advice. All right. We have. Is it okay? Okay, Tabina is asking, is it okay to use artificial sweetener to reduce sugar intake? This would be Okay, a yeah, good this is a good question. Yes. yeah. So, artificial sweetener. So, FDA, which is Food and Drug Administration in the US, they have actually approved certain amount of different artificial sweeteners that we can take throughout the day. Like if you're taking so any that kind of sweetener. So, उसके लिए उन्होंने एक amount बताई हुई है कि इतनी amount आप लेंगे तो आपको negative effects इस artificial sweetener के नहीं होंगे. But ठीक. in my practice and several other dietitians also, we completely try to avoid artificial sweeteners. Although अगर आप उस amount में लें according to FDA उसके नुकसानात नहीं हैं, but long term in some studies long term use of artificial sweeteners is related with some physiologic changes in your body and some All mental changes also. सो right. Okay. अगर हम इसको पूरी तरह अवॉइड करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. सो जो एक तरीका बताती हूँ इसके लिए कि आप क्या कर सकते हैं, वो ये है कि शुगर का अमाउंट जो भी आप जिस भी चीज़ में आप स्वीटनर यूज़ कर रहे हैं या शुगर यूज़ कर रहे हैं उसको आप ग्रेजुअली कम करें, अपने टेस्ट बड्स को Right. ग्रेजुअली चेंज करें. सो दैट इज़ अ बेटर एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच जो कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी. आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रह के आप अगर नेचुरल वे में अपनी टेस्ट बड्स को चेंज कर सकते हैं तो वो करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. ठीक. Okay. So we're still taking questions. If anyone would like to post any questions, thank you so much for taking out so much of your time and answering all of these questions and giving us such great information, Meena. Yeah, I hope it helped. No, it's definitely very, very helpful. Okay, that's great. Good to know. Yeah. All right, should we conclude the session? We're not getting any more questions. Do you have anything else to add before we conclude? I think we can actually consolidatively say कि अपनी डाइट में वैरायटी रखें. आप जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको ग्रोसरी की शॉपिंग करते हुए वो सब चीज़ें, मीट जो मैंने कहा है कि आप वीक में 2 बार रेड मीट भी इंक्लूड करें, देन टेक सम सी फूड. अगर सी फूड कर सकते हैं तो दैट वुड बी परफेक्ट फॉर यू कि अगर सी फूड भी इंक्लूड कर सकते हैं. एंड देन चिकन थोड़ा 1-2 बार आप ले सकते हैं. एंड प्रोटीन के जो अफोर्डेबल सोर्सेज मैंने बताए हैं, खिचड़ी, पी पुलाव, मिक्स ऑफ दालें, मिक्स ऑफ बीन्स एंड राइस की कॉम्बिनेशन. सो इस तरह की चीज़ें आप इंक्लूड करें तो आपकी काफ़ी वैरायटी. एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगैन उनको इंक्लूड करके रखें अपनी डाइट में. द वे आई टोल्ड यू कि अपनी प्लेट को किस तरह डिवाइड करना है, देन यू हैव बेटर चांसेस ऑफ having good amount of nutrients in your diet. बस इन चीज़ों का ध्यान रखें तो इंशाल्लाह इवन इफ यू गेट exposed to the virus आपको उससे डील करने में बेहतर होगा. आपके सिम्टम्स उतने सिवियर नहीं होंगे एंड यू विल गेट बेटर. मतलब आपकी रिकवरी फेज उसमें आपको वो बहुत हेल्प करेगा. वन मोर पॉइंट जो अभी मेरी माइंड में आया जो मैं ऐड कर दूं कि लाइक द पॉलीफिनॉल्स एंड जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जिंजर टी या इस तरह की चीज़ें किसी भी एक हर्ब पे बहुत फोकस किया जाता है कि वो लेने से विल गेट बेटर.
we Right. think that that is a medicine, but that's not the case. Actually, that helps you in elevating your symptoms. आपके symptoms को reduce करने में या खत्म करने में वो help करता है. वो आपके लिए cure सिर्फ नहीं होता है. So Right. Of treat course. those things in that way. टेक जिंजर टी और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये करोगे तो आप कंप्लीटली प्रोटेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं है. Okay. हल्दी का Okay, Meena, हल्दी वाला milk and all. we have a few more questions for you. Oh, okay. All right. So we've got Zafar Iqbal who is asking. He says that isolation and staying at home and the lockdown has basically resulted in obesity, especially central obesity. Do you have any advice for this? Okay, yes. So there was a poll done by Yorkshire Institute in UK. So they actually asked 2,000 people that how much of their physical activity has reduced. I don't exactly remember the amount, but the thing is, if they were active for 2 hours in a day in the normal thing, like active in this way that they were going to the office, they're walking from here and there, they're doing different things. If they were active, minimally active for 2 hours in a day, so that has been reduced to 30 minutes only. Right. You know, and there was an average weight gain of 6 kgs in the people. Yes. Like they have gained around like 3 to 6 kgs in all this time that they're home. Right. So yes, Dr. Zafar Iqbal is perfectly right. His question is basically staying at home during lockdown has resulted. Any advice? Yeah. So for that, if you actually follow the balanced diet के साथ you have to avoid trans fat, saturated fat, salt and sugar. If you avoid these things and processed food जो हमारे पास market में available है, क्योंकि जब से हम घर पे हैं चिप्स एंड जंक का खाना, इस तरह की चीजें खाना भी ज्यादा वो हो चुका है, ज्यादा बढ़ चुका है. So yeah, agar if you actually take care of these things, you keep your diet balance, include those things that I've told you, and physical activity थोड़ा include करके रखें अपने. The least amount of physical activity advised by WHO is 150 minutes in a day. So अगर आप 150 minutes in a week, आपको मिनिमम इतना करना है. So उसके लिए हम यही कहते हैं, अगर आप आधा घंटा के लिए भी पर डे एक्टिव हो जाएं, वॉकिंग कर लें, या अपने घर के अंदर ही आप वॉक कर सकते हो, यू डोंट हैव टू गो आउट इन पब्लिक, या फिर आप छत पे जा सकते हो, या अपने टीवी लाउंज के अंदर ही वॉक कर लें फॉर 30 मिनट्स. कोई भी ऐसा प्लेस देख लें घर के पास ही जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, वहाँ पे वॉक कर लें. या फिर आप योगा कर सकते हैं. देयर आर सेवरल गुड कोचेस अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, कि अगर आप वहाँ से लर्न करना चाहो, घर के अंदर प्रैक्टिस करें योगा एंड डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. Some people also have treadmill and cycles at their homes. So if you include 30 minutes of exercise at least in your per day, so that is going to help you with this problem. All right, and the last question is from Ambreen, and she's asking, are all food supplements safe? So all food supplements, as I've told, that you actually have to keep your diet balanced. आपका primary goal होना चाहिए that you take all the nutrients through your diet. Then you can supplement your diet with a good quality multivitamin or any nutrient if specifically you are deficient in one nutrient. Then so आपको उस तरह से फिर obviously you have to select a good quality a company that is providing good quality products. So वो देखना पड़ेगा. सारी फूड सप्लीमेंट्स तो जैसे हमने पहले भी कमेंट किया था कि दे आर नॉट सेफ, कि अगर आप एक ही किसी सप्लीमेंट पे फोकस कर रहे हैं उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, टॉक्सिसिटी के अपने नुकसान आते हैं. सो इट्स नॉट दिस दैट अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप डेफिनेटली, इसलिए मैंने कहा था कि यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक एंड देन डिसाइड इफ यू नीड दैट सप्लीमेंट, क्योंकि टॉक्सिसिटी इज आल्सो वेरी डेंजरस. सो यू हैव टू सी दैट. All right, Meena, thank you so much for joining us and giving us such great information. Okay. It was really great actually to talk about it. Thanks for calling me up. No, the pleasure was ours. So should we conclude the session then? I guess so. Thank you, Meena. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz. Take care. Bye, everybody. Bye.